question? We have done till 11th. 11th question. But I don't think we have discussed them all. Okay, I'll discuss with 8th question, starting from 8th question. If any question is left, you would like to ask any question from the previous question, you can tell me. So the 8th question is, blue color of copper sulfate is destroyed when iron fillings are added to it. So copper sulfate, this is blue in color. So when iron fillings are added to it, because iron is more reactive than copper, this gives you copper sulfate, CuSO4 plus FeSO4, iron sulfate, FeSO4 and copper, right? So this ferrous sulfate is green in color, you get green color, and this brown color deposition of copper occurs. The question was, blue color of copper sulfate is destroyed. Why is it destroyed? Because it is this copper is displaced by more reactive metal, which is iron, and it gives ferrous sulfate, right? This is the reaction. Then 9th question, which of the following pairs will give displacement reaction? So 4 options are given. First option is NaCl solution with copper metal. Second option, MgCl2 with aluminium. Third option, ferrous sulfate with silver. And fourth option, silver nitrate with copper. So this is based on the reactivity series. You need to check if more reactive element is present here, then the displacement reaction can take place, otherwise not. Like in first case, sodium is more reactive than copper. So copper being less reactive cannot displace sodium from NaCl, right? In second case, magnesium is more reactive than aluminium. So aluminium cannot displace magnesium from its salt. Then in third case, iron sulfate and silver. Silver is less reactive than iron, so it cannot displace this. But in fourth case, copper is more reactive than silver, so copper can combine with, if it is in 2 positive oxidation state, this formula becomes CuNO3 twice and silver precipitates out, right? So you need to check which element is more reactive and which is less reactive. Only more reactive metal can displace the one with the less reactive. Okay. Which of the following reaction will not occur? 11th question done. Have I skipped 10th question? So this is 10th question. On the basis of below reactions, indicate which is more reactive and which is least reactive metal out of zinc, copper and iron. So first reaction is copper sulfate. You react it with iron. This gives you FeSO4 plus copper. This means that iron is more reactive than copper. And second reaction is ferrous sulfate plus zinc. This gives you zinc sulfate plus iron. Because zinc is able to displace iron, that means zinc is more reactive than iron. So
we conclude that zinc is most reactive, then comes iron, and at last we have copper. So this is the reactivity order for the 10th question. And 11th question we've done. This is the question which we previously did. This is the 11th question. Now, I give you 5 minutes. Try doing 12th, 13th, 14th. Try doing this, then we will discuss. I'll ask one of you to come forward and then that student will answer the question. किया बेटा आपने? Look at the board. देखो अभी ये कहता है during the reaction some of the metals with dilute hydrochloric acid. The following observations were made by a student. पहला है silver does not show any change. मतलब अगर आप silver में dilute HCl डाल रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा. ठीक है. Some bubbles of gas are seen when lead is reacted with acid. जब इसको आप react कर रहे हो तो आपको कुछ bubbles इसमें देखते हैं. The reaction of sodium is highly explosive. जब आप इसके साथ करते हो बहुत जोर से reaction होता है. ठीक है. And the temperature of reaction mixture rises with when aluminium is added to it. ठीक है. मतलब क्या सिर्फ
HCl का रिएक्शन सिल्वर के साथ नहीं हो पा रहा है, बाकी सब बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें बबल्स निकल रहे हैं, इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, इसमें भी बहुत टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है कि इन चार एलिमेंट्स में से जो तीन एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है, इस ऑर्डर में। और इसीलिए सोडियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन तीनों में से, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। फिर एल्यूमिनियम जो कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा रहा है, लेड भी बबल्स दे रहा है, लेकिन जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, बस डिफरेंट लैंग्वेज होगी बेटी क्वेश्चन की, बाकी तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि दिस इज द रीजन। तो ऑब्जर्वेशन का ये रीजन ये है कि these elements sodium, aluminium and lead are more reactive than hydrogen, more reactive than hydrogen, and moreover इनमें भी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है सोडियम, एल्यूमिनियम देन लेड, इसीलिए जो उनका रिजल्ट है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक रहेगा इन केस ऑफ सोडियम, उससे थोड़ा कम इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, और लेड में सिर्फ बबल इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, दिस इज आंसर टू द 12th क्वेश्चन। कम टू 13th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई metals do not liberate hydrogen gas with dilute nitric acid. Who can tell me? 10th BC में whosoever as roll number 10, can you tell me what is the reason? Ma'am, because nitric acid is strong oxidizing agent and it oxidizes hydrogen into water. Yes, ठीक है, ये कहता है वेरी गुड बेटा दैट metals do not liberate hydrogen gas with dilute nitric acid because जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे लेड के साथ आपने देखा था हाइड्रोजन गैस के बबल बने थे, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस H2 में ये ऑक्सीजन ऐड करके इस हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ठीक है, it converts the hydrogen gas produced into water and itself, और खुद को क्या करेगा? किसी और को अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को उसको रिड्यूस करना पड़ता है, and reduces and itself it reduces to an oxide of nitrogen। n की जरूरत नहीं है, reduces to oxide of nitrogen, और ये ऑक्साइड्स हो सकती हैं NO2, NO या N2O। और इसमें एक्सेप्शन भी आती है, इसमें एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और मैंगनीज की, that they can react with very dilute nitric acid to produce hydrogen gas। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन भी इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है,
नेक्स्ट रिएक्शन आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज 14th क्वेश्चन. What happens when magnesium reacts with a very dilute nitric acid? Write an equation involved. तो मैग्नीशियम में अगर आप HNO3 पुट करोगे, this gives you मैग्नीशियम नाइट्रेट. Mg पे है 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट पे है -1, तो ये बन जाएगा MgNO3 ट्वाइस, और साथ में लिबरेट होगी hydrogen gas. Write it down. Okay. Whose roll number 15 in section AB? गर्ल्स वाला सेक्शन जो है. मैं एब्सेंट. एब्सेंट. रोल नंबर 16 है. यस. रोल नंबर 16 कम एंड टेल मी, इनमें से आपको बताना है कौन सी है एसिडिक ऑक्साइड्स, कौन सी है बेसिक ऑक्साइड्स, और कौन सी है न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स. पहले बताओ कौन बनाता है एसिडिक ऑक्साइड, मेटल या नॉन मेटल, कौन बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड. कौन बनाता है एसिडिक ऑक्साइड? मेटल बनाता है या नॉन मेटल? मेटल. मेटल नहीं, नॉन मेटल बनाता है एसिडिक ऑक्साइड्स. जो आपको क्वेश्चन में ऑक्साइड दी है, पहली दी है Na2O. क्या नेचर है इस ऑक्साइड का? क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन नंबर 15 है. बोलो. क्या? आपके पास असाइनमेंट है, यस. उसमें क्वेश्चन लिखे हैं. यस. यू फाइंड 15th क्वेश्चन. आपको पता है हम कौन सी वाली असाइनमेंट कर रहे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला 15th क्वेश्चन. मैं यस. तो अब आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन पढ़ा आपने? पढ़ रही है. आता है आंसर? यस. तो बताओ फिर, मैं आपसे पूछ रही हूँ. Na2O, what kind of oxide is it? मैडम. हाँ जी. एसिडिक. ऐसे एसिडिक. नहीं बैठो. Who's roll number 20? रोल नंबर 20 आ जाओ. हाँ जी बेटा. यस. Your question is choose the acidic, basic and the neutral oxide. My question was, आप मुझे बता सकते हो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल. नॉन मेटल. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग Na2O किस तरह की ऑक्साइड है, एसिडिक और बेसिक? एसिडिक. एसिडिक. बेसिक. सॉरी.
क्या है? बेसिक बेसिक। सोडियम एक मेटल है या नॉन मेटल है? मैम मेटल। मेटल। तो मेटल की जो ऑक्साइड है वो बेसिक होती है। चलना बैठो। रोल नंबर 23। रोल नंबर 23। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। आप बता सकते हो वो किस कैटेगरी में आएगा, एसिडिक या बेसिक? CO2 इज एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड? एसिडिक। एसिडिक क्यों? नॉन मेटल मैम। नॉन मेटल। ठीक है, तो ये बन जाएगा O2 जो कि है एसिडिक। फिर है CO। आप बताओगे CO कैसी है? एसिडिक। अब देखो, NO और N2O इनको याद ही रख लोगे तो बेटर रहेगा। वैसे इनका फंडा ये होता है कि नॉन मेटल्स वैसे तो एसिडिक बनाते हैं, लेकिन अगर लो एसिडिक सॉरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उनका नेचर वेरी कर सकता है। वैसे ही मेटल्स भी वैसे तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल अगर बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनकी ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक भी होती हैं। जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है तो वो Mn2O7 ऐसे एक ऑक्साइड होती है। तो चाहे वो मेटल है मैंगनीज, लेकिन इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की वजह से उसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो इनमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से अगर बेसिक नहीं तो कम से कम ये न्यूट्रल बन जाते हैं। तो इनको तो आपने याद ही रखना है, CONO N2O। ठीक है, ये आपके न्यूट्रल है और साथ में वाटर भी न्यूट्रल है। तो ये तो याद रख लेने हैं। बाकी को आप जनरली ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो कि मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं। हाँ जी, हुज रोल नंबर 15? 15 तो हो गया था ना पहले कि नहीं? 14 कर लेते हैं चलो। रोल नंबर 14 इन योर क्लास। यस मैम। नेक्स्ट इज SO2। व्हाट काइंड ऑफ oxide is it? Ma'am, your screen is not visible. My screen is not visible, but I didn't do anything. Your internet is not stable. I think so. Because you people are moving randomly. कभी आप फ्रीज हो जा रहे हो, कभी आप एकदम से हिल रहे हो, that means your internet may not be stable. ठीक है, मेरी स्क्रीन वैसे ही है। चलो, एनीवे स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरी आवाज सुन रही है तो आपके असाइनमेंट में ही क्वेश्चन है। अब मैं SO2 का पूछ रही थी, SO2 एसिडिक है या बेसिक है? मैम बेसिक। सल्फर एक नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर नॉन मेटल है और इसकी जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो आपको कैसे पता चल पाएगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? कुछ आपने इसका सोचा है कि कैसे पता होता है ये चीज, मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है? किसको पता है ये कैसे जज करते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? याद करते हैं सिर्फ? हु नोज इट, वो मुझे बताए प्लीज माइक ऑन करके। कैसे पता चलता है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? नहीं पता? तो अब देखो फिर। मैम जिसके शेल एंड वाले शेल में 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जिसके शेल में 5, 6 एंड 7 दैट आर नॉन मेटल्स। अब थोड़ी सी करेक्शन करूंगी। देखो, आपको पहले तो फर्स्ट 20 पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा अभी
कर भी सकते हो वैसे, पर भाई वैसे फर्स्ट 20 पे फोकस कर लो। जैसे आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, दिस इज 11, दिस इज 281, 12, this is 282, 13, this is 283, 14, this is 284, 15, this is 285, 16, this is 286, 17, this is 287, 18, this is 288, 19, this is 2881, and 20, this is 2882. ठीक है, अब इनमें जिनके पास भी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए इसको लूज कर पाना इजी है। they can lose these electron and they can show +1, +2 and +3 oxidation state, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी जो है वो मेटल्स की होती है, और फिर यही मेटल्स बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो शेयर करता है, वो लेगा या देगा वो डिपेंड करता है किसके साथ वो ज्वाइंट है। ठीक है, 5 वाला 3 गेन करता है, 6 वाला 2 गेन करता है, 7 वाला 1 गेन करता है अपनी लास्ट शेल को फुल करने के लिए। 3 गेन करेगा तो इस पे आएगा -3, 2 गेन करने पे -2, 1 गेन करने पे -1। ठीक है, 8 वाला कुछ नहीं करता, ये जो गेन करके बनेगा ये बनेगा एनायन। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉन मेटल्स की, और ये बनाते हैं एसिडिक कंपाउंड्स। दिस इज जनरल थिंग, जिस पे एक्सेप्शन जरूर हो सकती हैं। और अगेन ये 1 और 2 वाला हो गया तो ये भी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, लूज करके +1 या +2, ये भी बनाएगा कैटायन, ये भी होगा मेटालिक और ये भी होगा बेसिक। राइट इट डाउन, इससे आपकी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। आयनिक बॉन्ड, कैटायन, एनायन, लूज करना, गेन करना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, जैसे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को वी टर्म इट एज ऑक्सीडेशन। ये सब ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो गेन कर रहे हैं, gain of electrons, this is termed as reduction। आपने redox reaction भी टाइप ऑफ रिएक्शंस में पढ़े हैं, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मेटल्स क्या शो करते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन शो करते हैं, और नॉन मेटल्स दे प्रेफर रिड्यूसिंग। ठीक है, give you some time, please note it down, this is very useful to explain many concepts, to understand bonding, to understand कौन metallic, कौन ionic, कौन cation, कौन anion, कौन basic, कौन acidic, कौन oxidize, कौन reduce होगा। और ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, पर वो भी मैंने आपको 11 to 20 वाले बताए हैं, which you supposed to learn।
Hope you've done. Now come to next question. तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी उससे चेक भी करोगे तो Na2O ये मेटल आ गया, तो ये बेसिक हो जाएगा नेचर में. देन CO, कार्बन इज अ नॉन मेटल. ठीक है. तो लेकिन CO2 में तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, उस पर +4 चार्ज आता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है. मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ जिसको समझ आए. अच्छी बात है. जैसे ये CO है और ये CO2 है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होती है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके O2 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अगर ये 2 नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव हुआ, तभी ये कैंसिल होके CO बनेगा. ठीक है. तो इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई. और यहाँ पर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल ये -4 हो जाएगी 2 ऑक्सीजन पे, तो इस पे +4 आ जाएगी. ठीक है. तो +4 वाला जो है वो नॉन मेटालिक करेक्टर उस पे ज्यादा हुआ और वो एसिडिक हो जाएगा. लेकिन +2, वैसे तो +2 वाला हमने किया था कि जिसपे +2 चार्ज है वो मेटालिक और लूज करके बेसिक होना चाहिए. लेकिन कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, वो बस इस कंपाउंड में उसने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है, तो वो बेसिक तो नहीं है लेकिन वो है न्यूट्रल. और वैसे मैंने कहा आपको ये याद ही कर लेनी है, CONO N2O. ठीक है. ये हायर क्लासेस में भी आपको ऐसे ही चलता रहेगा, साथ में वाटर भी CONO N2O, और वाटर आपके न्यूट्रल रहेंगे. कार्बन नॉन मेटल है, इसके नीचे सल्फर है, वो भी नॉन मेटालिक है नेचर में, इसीलिए इनकी एसिडिक होंगी ऑक्साइड्स. और यहाँ पर मैग्नीशियम आप देख रहे हो, मैग्नीशियम मेटालिक में आएगा और वो बेसिक होगा, तो MgO बेसिक है. ठीक है. नेक्स्ट कम टू 16th क्वेश्चन. 16th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक. हाँ जी, कौन बताएगा कौन है एम्फोटेरिक इसमें. दो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होती है में. जिंक एंड एल्यूमिनियम. Zinc and aluminium. So ZnO and Al2O3. These are amphoteric in nature. ये भी आप याद ही रख लोगे. ठीक है. These are amphoteric in nature. Then come to 17th question. Complete and balance the following. Give you 2 minutes. फटाफट देखो, कंप्लीट करो और बैलेंस करो.
डन बेटे। Yes. ओके देखो फर्स्ट वन इज सोडियम प्लस वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? बोलो। Na2 Na2O. Na2O, Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। और फिर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये बन जाएगा 2Na2O, ठीक है। और सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगी? ऑक्साइड में वाटर ऐड करोगे तो दिस गिव्स यू मैम Na के आगे 4 आएगा। Na के आगे 4। ठीक है 4 हो गया अब ये, दिस बिकम्स 4Na, ठीक है। अच्छा अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें पुट किया, बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 सोडियम है 2, यहाँ प्लस Na H2 प्लस H2। ओके, एक मिनट रुको। ओके कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट इज Fe प्लस वाटर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन? आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? Fe 2O3। 2O3 या 3O4 वाटर के साथ? बोलो क्या पढ़ा है आपने? Fe2O3। Fe2O3 क्या नाम होता है Fe2O3 का? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड कौन होता है? FeO। FeO। और Fe3O4 क्या होता है? बोलो। Fe3O4 सुना है पहले? यस। क्या होता है? बोलो। जब हम फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को प्लस कर देते हैं तो Fe3O4 बनता है। FeO प्लस Fe2O3 को मिला के Fe3O4 बनेगा अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर इसमें ऐड करते हो, ठीक है। तो अगर मैंने Fe3O4 प्लस H2 बनाना हो, बैलेंस करो इसको, क्या बनेगा? क्या कोफिशिएंट आएगा जल्दी बताओ। थ्री Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। यस, ठीक है। तो वैसे तो वो भी गलत नहीं होगी, लेकिन मेरे माइंड में तो ये था अगर एक्सेस ऑफ वाटर डालते हो तो Fe3O4 भी बन सकता है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप उसको बैलेंस कर सकते हो। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन। ट्राई राइटिंग, आई गिव यू 2 minutes। लिखो जरा क्या क्या इक्वेशंस इसमें मिलेंगी। Mixture of cuprous oxide.
हाँ जी, लिखे आपने? देखो इधर Yes. जिधर मैंने लिखा है या उन्होंने लिखा वो क्रॉस चेक करो। फर्स्ट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक में भी Hg पे 2 पॉजिटिव होता है, मर्क्यूरस भी होता है। Hg 1 पॉजिटिव, मर्क्यूरस भी होता है, तो ध्यान से देखना है। मर्क्यूरस बोला है या मर्क्यूरिक? तो मर्क्यूरिक बोला है तो HgO, ठीक है। इसको हीट किया है तो आपके पास मिलेगा मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, उसको बैलेंस करना है। सेकेंड है मिक्सचर ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड, Cu1 पॉजिटिव की ऑक्साइड, ये क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। एंड क्यूपरस सल्फाइड, अगेन Cu1 पॉजिटिव की सल्फाइड। ये इसको हीट किया तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर बैलेंस करना है। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम इज हीटेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम है Al, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया आपके पास MnO2, और इससे मिल गया एल्यूमिनियम की ऑक्साइड प्लस मैंगनीज। फोर्थ वन इज फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। फेरिक Fe3 पॉजिटिव वाली ऑक्साइड आपको बनानी है, Fe पे 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। तो फेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पुट करोगे, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाएगी और आयरन बच जाएगी। नेक्स्ट इज जिंक कार्बोनेट को अगर हीट करोगे, उसको हीट करके मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका 18th क्वेश्चन। 19th पढ़ो जरा एक बार। देखो बेटा 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मेटल A reacts violently with cold water, ठीक है, and the gas evolved catches fire. Cold gas catches fire. Which gas is this? Which gas catches fire? Sodium. Sodium. Which gas catches fire, I asked. Sodium? Hydrogen. Another metal when dipped in water starts floating. B है, it floats Potassium. and C does not react either with cold water or hot water, but reacts with steam, ठीक है। C जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता। आपको बताना है व्हाट इज ABCD हियर। सो A is Sodium. Potassium. Sodium. why not potassium? चलो सोडियम Sodium and potassium. ठीक है। एंड B is Calcium. is Zinc. Iron. and is copper, ठीक है। चलो 20th क्वेश्चन करो फटाफट। देखकर क्या लिख रहे हो आप, खुद करो।
Done. Okay, so 20th question is a student working in laboratory with metal E, which is stored under kerosene oil. Somehow, a small piece of this metal fell in the beaker containing water and starts burning. Name the metal E. Which metal is this? Which is stored under kerosene oil? One breathe fire. Okay, next is write chemical equation for the reaction when metal E reacts with water. State the nature of the product formed. So what happens when this metal reacts with water? What is formed? Sodium hydroxide and hydrogen gas. Sodium hydroxide and hydrogen gas. Now, what is the nature of this product? Basic hydroxide. Nature means you have to tell whether it is acidic or basic in nature. Basic hydroxide. बेस है ये तो एक बेसिक इन नेचर हो गया. नेम द प्रोसेस बाय व्हिच दिस मेटल ई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स मॉल्टन क्लोराइड. बताओ कैसे मिलता है सोडियम की Electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हो NaCl की Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आपके पास हैं. इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कैरी आउट करोगे तो आपके पास है एनोड. एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो Cl नेगेटिव यहाँ पर जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो जाता है. और Na पॉजिटिव जाता है कैथोड पे, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसमें सोडियम को आप ऑब्टेन कर सकते हो NaCl के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करके. ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. तो Cl पे नेगेटिव था, वो अपना नेगेटिव खत्म कर देगा, उसको निकाल के लूज कर देगा. ठीक है, और ये है कैथोड. कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन. रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो सोडियम फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करके Na पॉजिटिव से Na बना देगा. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, ओके करो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करो फटाफट. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Please wait for a while, ma'am. Please. जी, Please wait for a while, ma'am. ओके फाइन.
Okay, shall we start next question? 21st question. किया आपने read? Yes. Okay. Yes. The question is, name a metal of medium reactivity and three main steps in the extraction of metal from its sulfide ore. So can you tell me which metal is this? Medium reactivity वाला कौन सा metal हम करेंगे? Zinc. Zinc. Okay. So metal with medium reactivity जो हमने लिया वो है zinc. अब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इसकी सल्फाइड और ली है जिंक सल्फाइड. ठीक है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी फॉलो फॉर अ सल्फाइड ओर? Concentration of ore. कैसे करते हैं कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर? Crushing or grinding. ओके, वो तो सबके लिए ठीक है. फर्स्ट स्टेप तो ये सबके लिए होता है, कुछ स्पेशल इसके लिए नहीं हुआ. ठीक है. उसके बाद Conversion of ore into metal oxide. ओके, आपने रोस्टिंग पढ़ा है? Yes. रोस्टिंग या कैल्सिनेशन क्या फॉलो करते हैं? क्या? Can you repeat? आई एम आस्किंग, यहाँ पर आपने बोला कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर टू मेटल ऑक्साइड. दिस इज व्हाट यू सेड. Yes. There are two processes which are used to convert. Roasting and calcination. Which one will be used? Roasting. Roasting. So, Because we are using roasting for sulfide ores and calcination for carbonate ores. okay, इसका रीजन पता है? बोलो. I know you know the answers. मैं वैसे पूछ रही हूँ आप. You know why is roasting used for sulfide ores? ओके. देखो, जो आपके पास दूसरे ओर्स होते हैं ना, नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए या सल्फाइड्स हो गए, जिसके पास एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं होता, वो वाली ओर्स को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना पड़ता है ताकि वो मेटल की ऑक्साइड में चेंज हो. ठीक है. जैसे जिंक सल्फाइड अगर आप लोगे तो जिंक सल्फाइड को आप रोस्ट करोगे, रोस्टिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो उसको ऑक्सीजन लगा पाओगे. लेकिन अगर ये जिंक वाली और कार्बोनेट के फॉर्म में होती तो उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था, तो हमें और ऑक्सीजन देने की इसको जरूरत नहीं थी. हम सीधा इसको हीट कर सकते थे और ये ZnO प्लस CO2 बन जाता. ठीक है. जिंक ऑक्साइड बन जाता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था. लेकिन जो सल्फाइड और होती है उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए हमें इसकी रोस्टिंग करनी पड़ती है. ठीक है. एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप देन? Reduction of metal oxide into metal. ऑफ मेटल ऑक्साइड. ठीक है. कि अब हमें पहले तो इम्प्योरिटीज, कंसंट्रेशन में हम इम्प्योरिटीज हटा देते हैं. फिर क्योंकि हमारे को मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना इजी होता है, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, इसीलिए हम जो भी मेटल की ओर होती है पहले उसको मेटल की ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. ठीक है. क्योंकि ऑक्साइड में फिर सिर्फ ऑक्सीजन हटाना रह जाता है, तो किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट से आप कर सकते हो. और सबसे कॉमनली जो यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट वो है कार्बन. Carbon. सबसे सस्ता, सबसे अच्छा. ठीक है. कार्बन. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पर यहाँ पर जिंक सल्फाइड, सेकेंड वाले इसमें जिंक सल्फाइड को रोस्ट करके हमने जिंक ऑक्साइड में चेंज कर दिया और यहाँ जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाल के वी विल ऑब्टेन मेटल जिंक फ्रॉम दिस. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन. अगर आज ये खत्म हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली इनसे नेक्स्ट टॉपिक भी पूछिए ना. अभी नेक्स्ट क्या
Okay, let's do the next question. Question number 22. This says when two compounds, namely sodium chloride and calcium chloride, NaCl है और CaCl2 है, are heated directly one by one on the flame of a burner, they impart different colors to the flame. Name the color imparted by sodium chloride. Which color does sodium chloride impart? It gives you yellow color. ठीक है? And calcium chloride gives you brick red color. ठीक है? Then it says, are these compounds soluble in organic solvents such as kerosene or petrol? Justify your answer. So, देखो, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं. Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, Cl पे 1 नेगेटिव. दीज आर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हम उनको पोलर कंपाउंड्स भी बोलते हैं. केमिस्ट्री में पोल्स मींस उनके चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है? तो किसी भी चीज में डिसॉल्व होने के लिए या सॉल्युबल होने के लिए लगता है सॉल्युबिलिटी रूल, जो कि कहता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीजें आपस में इजीली घुल जाती हैं. जैसे वाटर और ऑयल नहीं घुलता है क्योंकि वाटर पोलर है. वाटर में क्या है? H पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है. लेकिन ऑयल में लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता. तो पानी और ऑयल नहीं डिसॉल्व करते. लेकिन पानी में अगर आप सॉल्ट ऐड करते हो, नमक ऐड करते हो, NaCl ऐड करते हो, तो वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है? तो वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि इसमें से वाटर पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ऑयल नॉन पोलर है. ठीक है? वैसे ही वाटर और सॉल्ट मिक्स कर जाते हैं क्योंकि दोनों पोलर हैं या दोनों आयनिक हैं, मतलब सेम नेचर की चीजें आपस में डिसॉल्व करेंगी. तो ये जो है पोलर कंपाउंड है. अगर आप इसको केरोसिन में डालोगे, केरोसिन क्या है? ऑयल है. तो ये दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड के साथ कंबाइन नहीं करता. केरोसिन ऑयल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, तो वो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड में नहीं डिसॉल्व करेगा. ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw the label diagram of experimental setup of action of steam on a metal. Name the gas produced. कर लोगे ये क्वेश्चन? देखो, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है 23, 24, 25 में से जो आप नहीं कर सकते? वो पूछ लो पहले मुझसे. जो आपको लगता है दिस वन इज डिफिकल्ट, तो बताओ मैम ये करवा दो. अदरवाइज आई विल मूव टू assertion reason पार्ट. थोड़े से assertion reason वाले कर लेते, फिर टाइम बचेगा तो वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे 24 तो ये स्टीम के साथ हमने कर लिए इस तरह के क्वेश्चन. 23rd, 24th में इट सेज that carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, aluminium to their respective metals. Why? क्योंकि कार्बन जो है वो इनसे लेस रिएक्टिव है. ये सारे मेटल्स जो है बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर प्लेस्ड हैं. ठीक है? तो आप लिख सकते हो because these metals are highly reactive. लिख लो, these metals are highly reactive. Answer 24 में these metals are highly reactive and have
strong affinity for oxygen. Highly reactive and have strong affinity for oxygen than carbon. और जो एग्जाम्पल के लिए आपको बोला है वो जैसे हमने सोडियम को ऑब्टेन करने के लिए ये इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप ये वाली लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल फॉर 24 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, come to 25th question. Name two metals which are obtained from their ores by simple heating. कौन से मेटल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, सिंपल हीटिंग से ऑब्टेन किया जा सकता है? These are very less reactive elements, जैसे कि मरकरी का हो गया या कॉपर का हो गया, कॉपर मरकरी ये वाले मेटल्स आप प्योरीफाई ऑब्वियसली फिर उसके बाद इनको करना पड़ता है, बट मरकरी एंड कॉपर कैन बी obtained with this method. Then is differentiate between calcination and roasting taken. ये भी हमने कर लिया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस, ZnS और ZnCO3, ये वाला आपका कैल्सिनेशन आ जाएगा और सल्फाइड के साथ आपका रोस्टिंग। यही डिफरेंस है इसमें कि सल्फाइड और में रोस्टिंग की जाती है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन हो, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर क्या कहते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। ठीक है, देन इज व्हाट इज मेंट बाय थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन किया है आपने? बोलो किसको आता है थर्माइट रिएक्शन? नहीं आता? Switch on your mic and tell me what is thermite reaction. और किस लिए किया जाता है? जैसे रेलवे ट्रैक पे अगर क्रैक आ जाए तो थर्माइट रिएक्शन का यूज किया जाता है। जिससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और ये मेटल क्रैक्स के बीच में फ्यूज हो जाता है और क्रैक्स फिल हो जाते हैं। Okay, now try assertion reasons. And can anybody tell me which chapter are you doing in the class at present? अपने टीचर के साथ कौन सा आप चैप्टर कर रहे हो या नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पिक कर सकते हैं? Yes, Tests are going on of carbon and compounds. carbon compounds. Would you like to do the same chapter with me? कर लिया है वो? क्या है क्या हमने Yes. वो कर लिया है। मेरे साथ कर लिया है? Yes. ठीक है, फिर अभी क्या फिर फिजिक्स वगैरह क्या कौन सा चैप्टर आप रिवाइज करोगे नेक्स्ट? मैम मैग्नेटिक इफेक्ट्स। फिजिक्स में करोगे, ठीक है। ट्राई डूइंग assertion reason बेटा।
Chalo, let's discuss. 36th question is a reason. The statement is in displacement reaction, metal A displaces metal B. So that means A is more reactive than B. Is it true? True. Reason given is the highly reactive metal can displace less reactive metal from their compounds in solution or A mold. option. A option. Okay. Come to next question, 37th. Ionic compounds have high melting and boiling point. True? Yes. And reason is a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. Is it true? A option. Okay. Third addition, 38th question. Sodium chloride has high melting point. Is this true? Yes. It's true. And the reason given is sodium chloride consists of Na positive and Cl negative ions. These oppositely charged ions are broken by a large amount of energy. Is this true? Yes. A option. Okay. 39th question. Ores of many metals are oxides. Is this true? Yes. क्योंकि बहुत सारे metals ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी रखते हैं तो ऑक्साइड भी बन जाती हैं. This is true. Reason is the elements or compounds which occur naturally in earth crust is known as ores. Is it true? True. B option. नहीं होते हैं वो minerals होते हैं. जो हमें नेचुरली आखिरिंग मिलते हैं वो मिनरल्स होते हैं. उन मिनरल्स में से जिनको बेनिफिशियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ओर्स होते हैं. ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ 39th क्वेश्चन. राइट. फिर है 40th question. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess of air. Is this true? Yes, सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में चेंज करने के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम हीट करते हैं. Reason, the sulfides are converted into oxides by heating above its melting point. Is this true? True. No, this is not true. ठीक है. Reason is a wrong statement. Come to 41. Question number 41. Alloys are used in electrical heating devices rather than pure metal. Is this true? Yes. Okay. And reason is alloys have higher melting point than constituent metal. Is this true? Yes. Yes. अच्छा. हमेशा हायर होगा. No. Oh. This is not always. हमेशा नहीं होगा. ठीक है. तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. जो भी मतलब इसका मेन वो होता है, मेन रीजन होता है वो उसकी हाई रेजिस्टिविटी से रिलेटेड होता है. और ताकि वो हाई टेम्परेचर को मतलब रेजिस्ट कर सके, ऑक्सीडेशन ना हो उसकी. तो ये दिस इज नॉट ट्रू एवरी टाइम. सो आई वोंट कंसिडर दिस करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. रीजन वाला. चलो फिर नेक्स्ट करो. केस बेस्ड ट्राई करो.
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में आपके सामने एक सेल बना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है कॉपर की। मैं आपको बताती हूँ, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जो इम्प्योर कॉपर है दैट इज मेड एनोड, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन हो सके। ऑक्सीडेशन होके ये कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाता रहता है, ठीक है। और हम पतली सी प्योर कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं, जहां पर ये कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां से जैसे ये कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से मूव करते रहते हैं। ये मूव करके इलेक्ट्रॉन्स, यही वाली आयंस जो यहां से जा रही हैं, यहां से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर बनकर डिपॉजिट हो जाती हैं इस पे, ठीक है। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है। इस पे रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और कॉपर 2 पॉजिटिव इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर करके कॉपर बना रहा है, ठीक है। और इसी दौरान जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे गिरती रहती हैं। इन इम्प्योरिटीज में सिल्वर, गोल्ड, सिलीनियम, बड़े अलग अलग मेटल्स होते हैं, और इन इम्प्योरिटीज को हम एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर कॉपर यहां से निकलता रहेगा, प्योर कॉपर की स्ट्रिप पे डिपॉजिट होता रहेगा, और इम्प्योरिटीज नीचे एज एनोड मड इकट्ठी होती रहेंगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 43 वाले में ये कहता है, जानवी ऑब्जर्व्ड हर स्कूल बेल इज कवर्ड विद ग्रीन कोटिंग व्हिच इज प्रीवियसली अ शाइनी ब्राउन सरफेस। क्यों हो सकता है ये? व्हाई इज दिस? Why is this happening? Because of formation of copper carbonate और copper hydroxide, उसकी corrosion हो गई है। What is the best method of refining this metal? कौन से मेथड से रिफाइन कर रहे हो? जो फर्स्ट किया। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। And what do you mean by anode mud? जो impurities नीचे settle down, that known as anode mud, ठीक है। चलो फिर अब ये इसमें से जो भी आपको डाउट्स होंगे वो हम कर सकते हैं नेक्स्ट उसमें। Till then, have a nice day, enjoy, study hard, ठीक है। Bye, see you next time.